Welcome students. Before this we have discussed about induced EMF. How EMF induces in a circuit. Then we have studied about it whenever there is change in magnetic flux through a circuit and EMF induces in the circuit. Means by changing the magnetic flux there can be EMF can be induced in a circuit. So today we will discuss about the various method of producing induced EMF. Clear? Methods of producing induced EMF. इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने के मेथड कौन कौन से हैं, किस तरह से हम ईएमएफ इंड्यूस करवा सकते हैं किसी सर्किट में. नाउ क्लियरली द ईएमएफ इंड्यूसेस इन a circuit due to the change in magnetic flux only. Then if it, how many methods are there by which we can change the magnetic flux through the circuit. Clear? कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करवाना है हमें, मेन चीज ये है. ठीक है, तो कितने तरीकों से हम मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसी सर्किट में से चेंज करवा सकते हैं. नाउ क्लियरली द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ सर्किट इज गिवन बाय I इज इक्वल टू NBA cos थीटा. ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी कॉइल है तो उसमें से चाहे वो सर्कुलर है चाहे रेक्टेंगुलर है तो उसमें से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना होगा. I is equal to NBA cos theta. N is the number of turns in the coil here, B is the magnetic field, A is area and theta is the angle between plane of the coil and magnetic field. Clear? Now by changing these quantities, because the magnetic flux through the coil depends upon these quantities, now the changing these quantities we can change the magnetic flux. Clear? It means very first is by changing number of turns through a coil. Second, by changing magnetic field. And third one is by changing area of the coil. Third is by changing area of coil. And fourth one is cos theta, orientation of the coil with the magnetic field. Theta means orientation of the coil with the magnetic field. For example, if you have a coil, suppose this is the coil. Ultimately, if magnetic field is in this direction, perpendicular to this plane and directed inward, then ultimately at this orientation, there will be maximum field lines which are crossing the surface. इस पूरे surface को maximum field lines cross कर रही हैं. लेकिन जैसे ही आप रोटेट करना शुरू करोगे, what happen, जो field lines हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगी इसमें से, ultimately डिक्रीज होती जाएंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से डिक्रीज होता जाएगा. इस ओरिएंटेशन के ऊपर इसका जो प्लेन है वो पैरेलल हो गया मैग्नेटिक फील्ड के, तो अल्टीमेटली कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं करेगी. इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल विल बी जीरो. इस केस में कोई मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं होगा. आगे जब आप और रोटेट करना शुरू करोगे, व्हाट हैपन, कुछ ना कुछ फील्ड लाइंस इसमें से क्रॉस करना शुरू हो जाएंगी. मैं फील्ड कैसे ले रहा हूं, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन एंड डायरेक्टेड इनवर्ड. तो अल्टीमेटली जैसे जैसे इसकी ओरिएंटेशन चेंज होती जाएगी, व्हाट हैपन, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है इसमें से इंक्रीज होता जाएगा. यहां पर आकर के मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स होगा. क्लियर? तो this is the orientation. We are changing the orientation of the coil. It means we are changing the angle between the plane of the coil and magnetic field. तो क्या जाएगा हमारे पास, by changing orientation of coil. These
are the various methods by which we can change the magnetic flux through a circuit, and there will be induced EMF in the circuit due to change in magnetic flux. Now, how we can change the area of the coil? That is very important, and this type of EMF induces is called motional EMF. Now, next is motional EMF. Motional EMF. Now, what is motional EMF? As it is clear from the name motional, it means it is due to the motion of the coil. For example, it may be rotational motion of the coil, चाहे rotational motion हो, चाहे to and fro motion हो coil की magnetic field के अंदर, किसी भी प्रकार की मोशन हो सकती है। तो उस केस में क्योंकि मोशन के कारण जो है इसका एरिया चेंज हो रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मोशनल EMF। फॉर एग्जांपल, सपोज वी हैव अ रेक्टेंगुलर कॉइल। Let this arm PQ of the coil is movable. It can slide like this. क्योंकि इसकी स्लाइड करने से क्या होगा, इसकी स्लाइड करने से जैसे अभी यहाँ पर है तो एरिया ये है, अंदर आ जाएगा एरिया ये कंसीडर हो जाएगा, और अंदर चला जाएगा एरिया ये बच जाएगा, जिसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पूरे सर्किट, अभी तक सर्किट मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। अब सपोज हमने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया, and this magnetic field is, as you know, cross, it means perpendicular to this plane and directed inward, directed away from the reader. Clear? Now if you move the arm, suppose initially arm is here, if we move the arm towards this side, then ultimately now the area will become this. It means एरिया इंक्रीजेस, एरिया इंक्रीज हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊंगा इस आर्म को, तो अब एरिया ये आ गया, इस एरिया के अंदर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है। अगर मैं अंदर की तरफ मूव करता हूँ तो यहाँ आ गया ये आर्म, अगर मान लीजिए यहाँ आ जाता है तो अल्टीमेटली ये एरिया कंसीडर होगा इसका। इट मींस बाय डिस्प्लेसिंग द आर्म PQ, द एरिया ऑफ द कॉइल कैन बी चेंज्ड। इट मींस नाउ सपोज the arm, consider a coil PQRS, rectangular coil, and arm PQ can slide on the coil. The arm of coil, the arm PQ can slide. Let the arm PQ moves with velocity v, and suppose L is the length of the coil, ये इसकी लेंथ L है, और किसी इंस्टेंट के ऊपर ये यहाँ है, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस जो है वो x डिस्टेंस है। तो क्लियरली जिस एरिया के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है, तो अभी तक ये एरिया जो है, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है। तो एट प्रेजेंट जो इसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो कितना होगा, then clearly magnetic flux is given by phi is equal to B dot A. Phi is B dot A. It means BA cos theta. If B is the magnetic field strength here, ये जो applied magnetic field है इसकी strength अगर मान लीजिए B है, then area B dot A, B और A के बीच में एंगल हमें कैलकुलेट करना है। अब इस केस में एरिया जो होगा किसी भी कॉइल का परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द कॉइल। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, एरिया इसका बाहर की तरफ है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब B डॉट A इज इक्वल टू BA cos 180 डिग्री। अगर मैं मैग्नीट्यूड यहाँ लेता हूँ इसका, cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1, बट मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए इसमें ये कितना आ जाएगा -1। तो यू कैन राइट इट एज BA। हालांकि जो -1 होगा, माइनस साइन जो है वो केवल और केवल क्योंकि यहाँ जो
मैग्नेटिक फ्लक्स है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मैं यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, ठीक है। तो I इज इक्वल टू बी ए, क्लियरली। अब इसमें क्योंकि आर्म जो है वो इस इंस्टेंट किसी इंस्टेंट के ऊपर इस पोजीशन के ऊपर है, पी क्यू पोजीशन के ऊपर, और ये जो डिस्टेंस है वो x है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्लियरली एट दिस इंस्टेंट a इज इक्वल टू l इनटू x। रेक्टेंगुलर कॉइल है तो इसका मतलब इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, ठीक है। देन हाउ मच EMF विल इंड्यूस इन दिस कॉइल, clearly E is equal to minus d phi upon dt according to Faraday's law. Then this can be written as minus d dt of phi is equal to b into a. A की वैल्यू L into x रख दी जाएगी तो ये बन जाएगा BLX. You can write it as phi की वैल्यू हो जाएगी b into a which is equal to b. A की वैल्यू थी मेरे पास L into x, then you can write it as BLX. Now ddt of BLX, clearly the magnitude of B is constant, this length is constant. What is changing as the arm PQ moves? What happened? The value of x is changing. In this case, जो वैल्यू x की है वो चेंज कर रही है यहाँ, तो इसका मतलब रेट चेंज किसका लिया जाएगा, x का। Then E is equal to minus BL into dx upon dt. dx upon dt. Now dx upon dt will be how much? E is equal to clearly rate change of displacement with respect to time. This is written as velocity, or you can write it as E is equal to minus BL into minus V. What is, क्योंकि V is equal to dx upon dt. As length is decreasing, क्योंकि ये डिक्रीज हो रही है, और इसके डिक्रीज होने से, लेंथ के डिक्रीज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज कर रहा है, तो अल्टीमेटली दिस dx upon dt कैन बी रिटन एज माइनस v. नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, यहाँ नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है द लेंथ इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट जो है इसकी इधर हो रही है, अंदर की तरफ डिस्प्लेस हो रही है, ये PQ आर्म जो है वो इधर डिस्प्लेस हो रहा है, और इसके इधर डिस्प्लेस करने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो डिक्रीज कर रहा है यहाँ पर, तो इसका यानी कि रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस जो है ये डिक्रीज कर रहा है। दैट इज व्हाई dx upon dt कैन बी रिटन एज माइनस v। तो अगर मैं ये माइनस लिखता हूं तो E इज इक्वल टू BLV। दिस इज द मोशनल EMF इंड्यूस्ड in this arm। अब क्योंकि ये EMF इंड्यूस हो जाएगी, यानी कि ये पोटेंशियल डिफरेंस इस आर्म के दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, दोनों एंड के अक्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ तो इसका मतलब ये एक बैटरी का रोल प्ले कर जाएगी, जस्ट लाइक अ बैटरी। इट मींस दिस सर्किट विल एक्ट एज लाइक दिस सर्किट। ये हमारी PQRS कॉइल है, यानी PQRS ये कॉइल है, तो इसका मतलब यहाँ इसके अक्रॉस जो है EMF इंड्यूस हो गई। EMF इंड्यूस होने का मतलब ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, सेटअप हो गया। अब अगर मैं यहाँ करंट की डायरेक्शन देखता हूँ, अब क्योंकि EMF इंड्यूस हुई तो इस सर्किट में से करंट भी होगा, तो करंट की क्या डायरेक्शन होगी, करंट की डायरेक्शन दी जाएगी फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। फर्स्ट फिंगर फील्ड क्रॉस है अंदर की तरफ, थंब मोशन, तो करंट की डायरेक्शन होगी नीचे। इसका मतलब ये इधर करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पर। तो इट मींस करंट चल रहा है P से Q की तरफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ का जो आउटर सर्किट है ये बैटरी का रोल प्ले करेगी, तो बैटरी के अंदर जो करंट चलेगा दैट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका मतलब बैटरी का रोल प्ले कर रही है। तो इस आर्म में करंट इधर है, तो इट मींस नीचे ये पॉजिटिव टर्मिनल का रोल प्ले करेगी और ऊपर वाला टर्मिनल जो है वो नेगेटिव टर्मिनल का रोल प्ले करेगा। अल्टीमेटली ये करंट सेटअप हो जाएगा इस डायरेक्शन में, इसमें यानी ये रोल प्ले करेगी एक बैटरी का।
जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो नीचे वाला टर्मिनल है इट विल बी एट हाई पोटेंशियल, यानी कि ये पॉजिटिव पोटेंशियल के ऊपर आ जाएगा और ये एंड जो है ये नेगेटिव एंड के ऊपर आ जाएगा, यानी ये बैटरी का रोल प्ले कर जाएंगे, क्योंकि बैटरी में करंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है और बाहर वाले सर्किट में जो करंट चलेगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चलेगा। तो इसका मतलब ये रोल जो है, ये एंड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल का रोल प्ले करेगा और ये एंड जो है इस रॉड का ये नेगेटिव टर्मिनल का रोल प्ले करेगा। ठीक है, अब अगर बाहर वाले सर्किट का कुछ रेजिस्टेंस है तो ये सिंपल वेरिएबल बन जाएगा। इसके अक्रॉस जो इसका जो ईएमएफ होगी, इस सेल की जो ईएमएफ होगी दैट विल बी BLV, where B is the magnetic field, applied magnetic field, L is the length of this arm, इस आर्म की लेंथ है और V क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, किस वेलोसिटी से ये मूव कर रही है, ये जो आर्म है ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो मोशनल ईएमएफ जो इंड्यूस होगी दैट विल बी BLV। अब क्योंकि इसमें करंट सेटअप हो गया, अगर करंट सेटअप हो गया तो अल्टीमेटली इस आर्म में इस तरह से करंट जा रहा है, लाइक दिस, यूं चल रहा है। अब इसको अंदर ले जाने के लिए इसके अंदर जो करंट इंड्यूस हुआ, अब इसकी अगर डायरेक्शन हम कैलकुलेट करें अकॉर्डिंग टू लेंज़'s लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नाउ क्लियरली इन दिस केस द मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग बाय मूविंग द आर्म PQ। PQ आर्म को मूव करने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जाने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो ये अंदर जाने से रोकेगा। तो इट मींस इस केस में इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगेगी। फोर्स किसकी वजह से लगेगी, जो ये करंट प्रोड्यूस हुआ। और करंट कितना हुआ, अगर ईएमएफ इंड्यूस E हुई, इफ सपोज जो PQ आर्म है हमारा, इसका रेजिस्टेंस R है, मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूं, जो PQ आर्म है इसका रेजिस्टेंस R है। इफ R इज रेजिस्टेंस ऑफ PQR, then current through the arm, it will be I is equal to E by R, which is equal to BLV upon R. This is the current through this arm. अब अगर ये करंट फ्लो कर गया इस कंडक्टर में से, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर का रोल प्ले कर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, and ultimately it will experiences a force due to magnetic field, because when current carrying conductor is placed in magnetic field it experiences a force. The direction of force is given by Fleming's left hand rule. What is Fleming's left hand rule? First finger field, center current, thumb force. Clearly in this case field is cross, it means perpendicular to plane and directed inward, and current is downward direction from P to Q. तो फर्स्ट फिंगर फील्ड आ गई, करंट इधर आ गया, फोर्स कहां चली जाएगी, थंब के इसमें। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, और कितनी फोर्स लगेगी, दैट विल बी F इज इक्वल टू ILB sin थीटा, थीटा की वैल्यू 90 है तो ILB, क्योंकि IL इधर है और B जो है वो परपेंडिकुलर है इसके, तो L और B के बीच में एंगल 90 डिग्री है। ठीक है, तो फोर्स लगेगी हमारे पास कितनी, ILB sin 90 का मतलब 1, इट मींस I की वैल्यू थी BLB upon R, then this can be written as B square L square V upon R. This is the force on the conductor on this arm. ये जो आर्म है, इस आर्म के ऊपर ये फोर्स एक्ट करेगी, और ये फोर्स एक्ट करेगी बाहर की तरफ, क्योंकि ये अंदर मूव कर रही है, ये आर्म जो है वो अंदर मूव कर रहा है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इसकी जो डायरेक्शन है ऑटोमेटिकली करंट की ऐसी डायरेक्शन हो गई कि इसको अंदर मूव करने से अपोज करेगी, तो इसके ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगेगी। ठीक है, अगर बाहर की तरफ फोर्स लगी then we have to apply some power, यानी external agency has to do some work
some power has to supply so that the arm PQ can move inward. कुछ ना कुछ पावर चाहिए होगी इसको अंदर मूव करने के लिए, एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा कितनी पावर जो है वो सप्लाई करनी पड़ेगी. देन क्लियरली पावर सप्लाइड विल बी, या पावर रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म. हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड? पावर रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म, मूव द आर्म. इस आर्म को मूव करने के लिए कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी? तो क्लियरली P is equal to F into V. This is the power required. F की वैल्यू आई थी मेरे पास ये V square L square V upon R. तो P is equal to V square L square V upon R into V. V के साथ स्क्वायर हो जाएगा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई. दिस इज द पावर रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म. आर्म को क्योंकि ये फोर्स इधर लग रही है, इस फोर्स के अगेंस्ट अगर हमने मूव करना है, देन हाउ मच पावर इज रिक्वायर्ड टू मूव द आर्म? देन द पावर रिक्वायर्ड विल बी V square L square V square upon R. नाउ हाउ मच पावर विल बी डिसिपेटेड? पावर डिसिपेशन कितनी होगी? नेक्स्ट वन इज पावर डिसिपेशन. How much power dissipation will be? Clearly P is equal to I square R. P is equal to I square R. Now clearly I is equal to BLV upon R. It means by squaring this B square L square V square upon R square into R cancel with R, then P can be written as B square L square V square upon R. This is the power dissipation. दोनों रिलेशन को अगर हम देखते हैं, the power required F into P and that will be B square L square V square upon R, and power dissipated will be B square L square V square upon R. This is the power dissipated. Clear? तो एरिया को चेंज करने का दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड फॉर चेंजिंग द एरिया बाय मूविंग द आर्म. यानी दिस EMF इज कॉल्ड मोशनल EMF. अब इस केस में नाउ सपोज वी हैव अ क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल यू आर गिवन ए रॉड. एक रॉड है, ये एक रॉड है. अब इस रॉड को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है. नाउ वी हैव टू मूव द रॉड एंड आफ्टर मूविंग द रॉड वी हैव टू कैलकुलेट द EMF इंड्यूस्ड. इफ आई मूव द रॉड इन दिस डायरेक्शन, अगर मैं इस रॉड को इस डायरेक्शन में मूव करता हूं, मान लीजिए इधर मूव करता हूं लाइक दिस, इस तरह से मूव करता हूं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. क्लियरली in this case no area will be sweep out by the rod during the time के साथ कोई भी एरिया स्वीप आउट नहीं करेगा. मतलब वेलोसिटी इधर थी इस रॉड की. नाउ इन दिस केस, इस केस में EMF इंड्यूस्ड विल बी जीरो. कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी. जब ये रॉड इस तरह से मूव करेगी ना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कोई EMF इंड्यूस नहीं होगी क्योंकि एरिया कोई भी स्वीप आउट नहीं करेगी. सपोज दिस रॉड इज गिवन लाइक दिस. यही सेम रॉड है. नाउ दिस रॉड इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन दिस डायरेक्शन. मान लीजिए आफ्टर टाइम t दिस रॉड रीचेस एट दिस पॉइंट. यहां पर पहुंच जाती है. थोड़ी देर के बाद ये रॉड जो है वो पहले यहां थी, अब यहां पहुंच जाएगी. अंडरस्टूड सी बात है. अगर इस रॉड की लेंथ L है सपोज, और इसमें कोई किसी वेलोसिटी v से मूव कर रही है, अल्टीमेटली किसी टाइम t के अंदर इसने ये एरिया स्वीप आउट किया. दिस इज द एरिया स्वेप्ट बाय दिस रॉड. ये जो रॉड है, मान लीजिए ये PQ कोई रॉड लेगी और थोड़ी देर बाद इसको यूं यहां से यहां मूव कर रहा है. पहले तो मैं मूव करवा रहा था इधर, नो EMF विल बी इंड्यूस्ड. बट इन दिस केस क्लियरली अगर ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है
ठीक है। तो इसका मतलब किसी टाइम में इसने यहां से लेकर के यहां तक इतना एरिया स्वीप आउट कर दिया। अगर एरिया स्वीप आउट किया किसी इंस्टेंट के बाद तो अल्टीमेटली फिर वही बात, अगर x इसकी डिस्टेंस है मान लीजिए क्लियरली, देन phi how much, then suppose at any time t its position will be p dash q dash, then area at any time t rod is at p dash q dash, then and p dash q dash is equal to, अब यहां से यहां तक की जो q q dash is equal to x, q q dash is equal to x, मतलब x डिस्टेंस तक ये डिस्प्लेस हो जाती है यहां तक ये रॉड। देन क्लियरली phi is equal to b dot a, यहां मुझे मैग्नीट्यूड ही लेना है तो b a cos थीटा का मतलब हो गया cos b a, ठीक है। नाउ क्लियरली इस केस में a की वैल्यू हो जाएगी l into x which is equal to blx, और phi is equal to but blx and e is equal to minus d phi upon dt, e is equal to minus d dt of blx, और b और l कांस्टेंट है, ये लेंथ कांस्टेंट रहेगी, चेंज हो रही है x, bl minus dx by dt। नाउ क्लियरली इस केस में क्या हो रहा है, एरिया जो है जैसे ये रॉड इधर से इधर मूव कर रही है तो एरिया इंक्रीज कर रहा है। एरिया इंक्रीज कर रहा है मतलब ये हो गया लेंथ इसकी इंक्रीज कर रही है और उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज कर रहा है। देन dx by dt इज प्लस v, यहां इसकी वैल्यू जो होगी इंक्रीज कर रहा है dx by dt इज इक्वल टू प्लस v, देन यू कैन राइट इट एज e इज इक्वल टू माइनस blv, माइनस साइन इसकी डायरेक्शन शो करेगा। तो इस केस में एरिया इंक्रीज कर रहा है तो इस केस में क्या होगा blv। अब अगर यही रॉड सपोज दिस रॉड इज मूविंग लाइक दिस, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैंने डॉट ले लिया, बात एक ही है, चाहे डॉट हो चाहे क्रॉस हो एक ही बात है, मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब मैंने इसी रॉड को, ये रॉड ले ली, सपोज लेंथ l है, अब मैंने क्या किया है इसको इस तरह से रोटेट करवाया रॉड को इसके अंदर लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पी क्यू रॉड थी और इसको यूं रोटेट करवाया गया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है रॉड, इसको रोटेट करवाया गया लाइक दिस इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में सपोज कोई ओमेगा वेलोसिटी के साथ इसको रोटेट करवाया गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द अक्रॉस द रॉड PQ, PQ रॉड में कितनी ईएमएफ इंड्यूस होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। लेट एट एनी इंस्टेंट या आफ्टर सम टाइम द रॉड विल बी एट दिस पोजीशन, यहां पर पहुंच जाती है, किसी टाइम t के बाद रॉड यहां पहुंच जाती है, p और q डैश बोल देता हूं। Now the rod is fixed at one end and rotated like this in a circular path. EMF induced in the rod will be how much? Clearly, area swept by the rod in time t is, किसी भी टाइम t के बाद अगर ये कोई एंगल थीटा बना लेती है मान लीजिए, then area swept by the rod in time t will be how much area will be swept? Clearly, अगर ये कंप्लीट रोटेशन करती है तो इसका मतलब टोटल एरिया कितना स्वीप आउट करेगी, ये एक चक्कर में ये टोटल एरिया स्वीप आउट करेगी पाई आर स्क्वायर सर्कुलर, यानी L इसकी लेंथ है तो एरिया स्वेप्ट इन कंप्लीट सर्किल, यानी कि अगर कंप्लीट सर्किल करती है ये तो इसका मतलब ये एंगल 2 पाई हो जाता है, तो ड्यूरिंग 2 पाई एंगल एरिया स्वेप्ट विल बी पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 पाई एंगल अगर ये कंप्लीट करती है तो ये एरिया स्वीप आउट करेगी एक पूरे सर्किल का एरिया, तो
यूनिट एंगल के दौरान करेगी ये पाई एल स्क्वायर अपॉन 2 पाई, यानी कि एल से एल के पाई से पाई कैंसिल, एल स्क्वायर बाय 2। तो थीटा एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि किसी टाइम t के बाद ये थीटा एंगल बना रही है, तो थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग कितना एंगल स्वीप करेगी, एल स्क्वायर बाय 2 इनटू थीटा। दिस विल बी द एरिया स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट ड्यूरिंग द एंगल थीटा। थीटा एंगल के दौरान जब इसका एंगल थीटा है यहां पर, तो उस केस में कितना एरिया स्वीप आउट करेगी, दैट विल बी एल स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है। देन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक इन टाइम t, किसी टाइम t में मैग्नेटिक फ्लक्स कितना लिंक हो जाएगा इसके साथ, I is equal to B डॉट A। BA, अब यहां थीटा की वैल्यू एरिया कॉइल का इधर आ जाता है, तो इसका मतलब एरिया के परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड डायरेक्ट आउटवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर की तरफ है, एंगल 0, तो दिस कैन बी रिटन एज दिस इज इक्वल टू BA। अब एरिया की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एरिया स्वीप आउट विल बी इन टाइम t में, नाउ एरिया स्वीप आउट इन टाइम t is A is equal to how much, L square theta by 2. This will be L square theta by 2. Then phi is equal to B into A, B L square theta by 2. ठीक है। This is the magnetic flux linked with this rod in time t. Then EMF induced, how much EMF will be induced, E is equal to minus d phi upon dt, which is equal to minus d dt of phi means B L square theta upon 2, or this can be written as minus d dt of B L square by 2 कॉमन कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल लो, बट इज चेंजिंग, जैसे ये रॉड मूव कर रही है तो थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, दिस कैन बी रिटन एज d थीटा अपॉन dt, और यू कैन राइट इट एज minus b l square by 2, what is d theta upon dt, this is angular velocity, ये angular displacement आ गई थीटा, then omega is equal to, but d theta upon dt is equal to omega, you can write it as omega, और E is equal to minus half B L square omega. This is also called rotational EMF, क्योंकि रॉड को एक एंड के ऊपर फिक्स करके रोटेट करवाया जा रहा है, तो उस केस में जो EMF इंड्यूस होगी that will be minus half B L square omega. Clear? This is all about rotational and motional EMF. तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।